Yes, friends, welcome you. You can say that this is probably today the last lecture of SEBI LODR. And today, in the last lecture, we completed it with the committees of board, where we saw that normally a company, as per Companies Act, is having three types of committee: audit committee, nomination and remuneration committee, and stakeholder relationship committee. But when it comes to SEBI LODR, we have four types of committee: audit committee, nomination and remuneration committee, stakeholder relationship committee, and the risk management committee. And we had a detailed discussion on those various different types of committees. Now today we start with compliances, and now we can say that compliance is something which you already know, and the major compliances come in your audit part. Here we need to just remember that which compliances are there and what is the time limit. Nothing more as such important, but we need to have a one-time look at those particular compliances which needed to be complied with. Now friends, if we start with notes, then we will see to it, this is your part 4, that there are certain quarterly compliances and there are certain yearly compliances, yani annual compliances. But before we come to this, let us start looking at the compliances. The very first is grievance redressal mechanism, B category. Grievance means complaints, redressal means solution. Law always requires that every company should have a grievance redressal mechanism, and as it's a listed company, obviously it is going to have a stakeholder relationship committee. So the major task of handling this particular mechanism, whereby if any stakeholder has any grievances, any complaints that can be redressed, that can be solved, that has been looked out by the stakeholder relationship committee. Now friends, what is this mechanism? The listed entity shall ensure that adequate steps are taken for expeditious, यानी speedy redressal of investors' complaint, यानी timely redressal होना चाहिए. The listed entity shall ensure that it is registered on SCORES platform. This is a SEBI operated platform for you can say the grievance redressal. SCORES stands for SEBI Complaint Redressal System, right? In order to handle the investors' complaint electronically in the manner specified by board, यानी कि SEBI. And regularly they have to file a statement. What is the statement? So number of complaints at the beginning which are pending at the beginning, फिर कितनी complaints receive हुई, कितनी dispose of होना यानी solve होना, and कितनी unresolved है. So हमने कहते opening plus purchase minus sales comes to closing, just like that. And the statement shall be filed on quarterly basis, because of quarterly compliances per day, within 21 days from the end of each quarter. And the statement shall be placed on quarterly basis before the board of directors of listed entity. So this is with respect to the grievance redressal mechanism. So if we see part 4, this is with respect to various compliances. This is with respect to various different compliances. Then the very first compliance is with respect to grievance
redressal mechanism. इसके मुताबिक हर एक लिस्टेड एंटिटी की ड्यूटी क्या होगी? To ensure that expeditious redressal takes place, to ensure that it is registered with scores. SEBI complaint redressal system platform. How it is? scores, SCORES, राइट. तो वो स्कोर्स के ऊपर क्या होनी चाहिए? रजिस्टर्ड होनी चाहिए. दूसरी उनकी जिम्मेदारी क्या है? रिपोर्ट. ड्यूरिंग द क्वार्टर, opening, pending complaints plus new received complaints less disposed of complaints, you come to what? Pending unresolved complaints. ऐसा एक रिपोर्ट बनाना है. एंड to file on quarterly basis to recognized stock exchanges, and दूसरा to place before board of directors. इतना खास उनको करना. Just copy down this much, friends. This is bit important. Copy down perfectly in your notebook.
Then the next is C category. Every listed entity at its discretion comply with requirements in part E of Schedule 2. यानी कि ये कुछ ऐसे compliances है जो discretionary है, discretionary यानी optional है. It is at the discretion that listed company may follow or may not follow. Like internal audit may report directly to audit committee, or the listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and MD और CEO. यानी वो दोनों अलग अलग होने चाहिए. वैसे तो उसका उन्हें रिपोर्टिंग करना चाहिए. Filing of compliance report on corporate governance. The listed entity shall submit a quarterly compliance report on corporate governance. This should also be in the format as specified by SEBI, and this quarterly compliance report should be submitted within 15 days from the close of the quarter. The details of all important transactions with related party should also be disclosed, and the quarterly compliance report shall be signed either by the compliance officer, जो हर एक लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करना होता है, और द सीईओ ऑफ द लिस्टेड एंटिटी. પછી होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न. अगेन इट इज नॉट दैट मच एन इंपॉर्टेंट पोर्शन. सी कैटेगरी. तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यानी कितने शेयर्स प्रमोटर्स के पास है, कितने शेयर्स पब्लिक के पास है. उसमें पब्लिक में के पास जो है उसमें से कितने क्यूआईबीज के पास है, कितने आरआईएस के पास है, कितने एनआईएस के पास है. वैसे पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न. The listed entity shall submit to stock exchange statement showing the holding of securities and shareholding pattern of each class of securities. यानी हर एक प्रकार की जो सिक्योरिटीज उसके लिए अलग अलग होना चाहिए. It should be as per the format specified by board, and the statement shall be submitted within following timelines. कब कब ये सबमिट करना है, तो जब भी आप लिस्टिंग करवाते हो उसके एक दिन पहले, देन हर एक क्वार्टर के एंड में 21 दिन के अंदर अंदर, फिर जब भी आप कोई प्रकार का कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग करते हो, राइट, एंड उसके कारण जो चेंज आता है वो 2% से ज्यादा हो तो उसके 10 दिन में, राइट, उन्हें रेगुलरली क्या करना होगा, अपडेट करना होगा. तो जस्ट फ्रेंड्स, डू वन थिंग, जस्ट रीड दिस मच. Plus, the listed entity should ensure that 100% of shareholding of promoters and promoter groups is in dematerialized form, and the same shall be maintained on a continuous basis. यानी उनका फिजिकल फॉर्म में कभी हो सकता नहीं. हम जानते हैं दो प्रकार से शेयर्स होल्ड कर सकते हैं, इधर इन अ फिजिकल फॉर्म यानी सर्टिफिकेट फॉर्म, और इन अ डीमेट फॉर्म, दैट इज विद अ डिपोजिटरी. The listed entity shall comply with circulars or directions यानी orders issued by SEBI from time to time with respect to maintenance of shareholding in dematerialized form. All entities falling under promoter and promoter group should disclose separately its shareholding, appearing on website of all stock exchanges having nationwide terminals. So basically this stock exchange having nationwide terminal यानी जो नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज है, लाइक BSE, NSE, where the specified securities of entities are listed. फिर एक और कंप्लायंस आता है रेगुलेशन 32 का. अगेन दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट गुड. दैट इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, कि आपने अगर जो चीज के लिए पैसे रेज किए उसके अलावा अगर आप कोई चीज के लिए उस पैसों को यूज करते हो तो खास बताना होगा. द लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू स्टॉक एक्सचेंज with respect to every public issue, right issue or preferential issue. The statement shall contain the deviations, if any, in the use of proceeds, yani money, from the object stated in offer document. Offer document yani prospectus or explanatory statement annexed to notice as applicable. Moreover, with respect to every public issue, right issue or preferential issue, such statement shall contain category wise variation. यानी कि अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना वेरिएशन आया, सेल्स एंड मार्केटिंग में कितना वेरिएशन आया, वर्किंग कैपिटल में कितना वेरिएशन आया, एंड जो अपने प्रोजेक्टेड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड जो किया था एंड जो एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है
उसके बीच का जो वेरिएशन है वो कैटेगरिकल वेरिएशन आपको बताना होगा. The statement shall be submitted on quarterly basis and the statement shall be continued to be given till such time the issue proceeds have been fully utilized or the purpose for which the proceeds was raised has been achieved. And the listed entity shall furnish an explanation for the variation. कि ये variation हुआ, चलो good, but ये variation क्यों हुआ, right? In the director's report, यानी कि board report, which is the part of the annual report. And where a listed entity has raised funds to preferential allotment, यानी कि जब उसने अब तो हमारे सिलेबस में है नहीं क्या है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, बट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट यानी जब कंपनी प्रमोटर ग्रुप QIP इन लोगों को, अपनी जान पहचान वाले लोगों को ही शेयर्स दे, या QIP जब शेयर्स दिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट यानी issue of securities only to promoter group, QIB. अच्छा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, तो इसका मतलब क्या? इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज ओनली टू QIBs, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को शेयर्स दिए गए, उसकी बात. It shall disclose every year the utilization of funds during that year in its annual report until such funds are fully utilized. So this is basically, you can say, a annual compliance. Friends, मैं थोड़ा इसमें फास्ट जा रहा हूँ because ये सब मॉड्यूल में नहीं दिया. This is not given that much in module, पर एक ओवरव्यू हमें होना चाहिए. जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको लिखवा दूंगा. अब जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात है, दिस इज B कैटेगरी एंड सेम एज ऑडिट. फ्रेंड्स, हमारे ऑडिट में ही आता है, एंड मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जब आप इंटर में चैप्टर 9 ऑफ कंपनीज एक्ट पढ़ते थे, दैट वाज अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, उसमें जो पढ़ते थे उसमें ये सारी चीजें आती थी. फिर भी एक बार देख लेते हैं. द फाइनेंशियल रिजल्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल अकाउंटेंसी पॉलिसी, ऑब्वियस, right, cash basis and accrual basis, and shall be in accordance with uniform accounting practices adopted for all the periods. Very much obvious. The quarterly financial statements submitted shall be approved by board of directors. आप जानते हो कि फ्रेंड्स कि जो recognized listed companies होती है वो yearly नहीं, वो quarterly statements देती है. While placing the financial reports before BOD, the CEO and CFO of the listed entity shall certify that the financial results does not contain any false or misleading statements or figures and does not omit any material facts which make the statements or figures contained therein misleading, and the financial results submitted to stock exchange shall be signed by the chairperson or MD or WTD, or in absence of them it shall be signed by other director of the listed company. The listed entity shall submit quarterly and year to date, यानी पहला क्वार्टर क्या होगा? यू कैन से अप्रैल, मई, जून. फिर दूसरी बार वो क्या करेंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, एंड इसके साथ दूसरा क्या आएगा? अप्रैल टू सितंबर, दैट इज ईयर टू डेट, राइट. वैसे फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर प्लस अप्रैल टू दिसंबर, दैट इज ईयर टू डेट. In case the listed entity has subsidiaries, the listed entity shall also submit quarterly or year-to-date consolidated financial statements of subsidiaries also. The quarterly and year-to-date financial results may be either audited or they may be limited review, यानी unaudited. And the listed entity shall submit annual standalone financial results for the financial. Annual जो होंगे वो तो obviously audited होने चाहिए within 60 days from the end of the financial year, along with the audit report and the statement on impact of audit qualifications. However, in case of an audit report with unmodified opinion, blah blah blah. अब ये सब क्या आया? जो हम ऑडिट में मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड पढ़ते थे वही सब चीजें उन्होंने यहाँ पे दी हुई है. एनुअल रिपोर्ट, अगेन नॉट दैट मच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेम एज ऑडिट. ये भी आप ऑडिट में पढ़े हुए या फिर पढ़ोगे. एंड अगेन दिस वाज कमिंग इन आवर इंटरमीडिएट in the subject of company law, chapter number 9.
The listed entity shall submit to stock exchange and also publish on website. So दो जगह, स्टॉक एक्सचेंज को भी देना है, खुद के वेबसाइट पे भी रखना है. A copy of annual report sent to the shareholders. जो एनुअल जनरल मीटिंग की जो नोटिस होगी उसके साथ जो एनुअल रिपोर्ट की कॉपी जाएगी उसकी बात है. Along with the notice of AGM, not later than the day of commencement of dispatch to his shareholder. यानी कि जिस दिन शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजना शुरू होता है उसके या उसके पहले ये पब्लिश हो जानी चाहिए. In the event of any changes to the annual report, the revised copy along with the details of an explanation for the changes shall be sent not later than 48 hours after the AGM. And क्या होना चाहिए? Annual report के contents, financial statement, consolidated financial statement, cash flow statement, board report, and MDAR, management discussion and analysis report, and business responsibility report. ये किस में आना चाहिए? Of top 500 listed entities based on market capitalization, right? So all these things should be the part, right, of, you can say, the annual report which is being sent to shareholders. Also it is published on website and also it is given to you can say stock markets. एक और बी कैटेगरी क्वेश्चन है, टाइम लिमिट फॉर सेंडिंग एनुअल रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स. ये तो हम जानते ही सिमिलर है. द लिस्टेड एंटिटी शैल सेंड एनुअल रिपोर्ट टू द होल्डर्स ऑफ इट्स सिक्योरिटीज not less than 21 days before the general meeting. Again ये सब कुछ इंटरमीडिएट में कंपनी लॉ में आता था, सिमिलर है, कुछ नया नहीं है. The listed entity shall send the annual report in the following manner to shareholders. Soft copies of full annual report on their registered addresses with the listed entity or depository. Hard copy of statements containing the salient features. Salient features in the sense what? Highlighting features of all the documents who have not so registered, and hard copy of full annual reports to those shareholders who request for the same. जो मांगते हैं उनको पूरा भेजते हैं और जिनका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है ही नहीं उनको salient features भेजते हैं. In case of appointment of a new director or reappointment of directors, the shareholders must be provided with the following information. कोई भी director आएगा या reappoint होगा, कौन कौन सी information? Director का resume, फिर डायरेक्टर किस चीजों में एक्सपर्ट है, उसके रिलेशनशिप्स बिटवीन डायरेक्टर्स इंटर से, names of listed entities in which the person also holds directorship, and the membership of committee of boards of directors, यानी कि कितनी और कमिटीज में वो पार्ट है. शेयर होल्डिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये रेगुलरली उन्हें क्या करना होगा? डिस्क्लोज करना होगा. Now what is this record date? ये एक ऐसी डेट होगी जिस डेट के दिन कोई ट्रांसफर रिकॉर्ड नहीं होगा, एंड उस दिन जो मेंबर्स होंगे दे विल बी एलिजिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट बेनिफिट्स. Now what they say, the listed entity shall intimate the record date to all stock exchanges where it is listed for following purpose. डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए हो, राइट शेयर्स या बोनस शेयर्स के लिए हो, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स के लिए हो, या कोई कॉर्पोरेट एक्शंस हो लाइक मर्जर, डीमर्जर्स, स्प्लिट एक्सेट्रा, और सच अदर पर्पस जो सेबी कहता है. And what is the time limit? The intimation shall be given to stock exchanges at least 7 working days. क्लियर, यानी जिस दिन डिस्क्लोजर दो वो भी निकल जाएगा, एंड जिस दिन रिकॉर्ड डेट यानी करीबन 9 दिन बिफोर द रिकॉर्ड डेट, एंड द इंटीमेशन शैल स्पेसिफाई द पर्पस फॉर द रिकॉर्ड डेट. द लिस्टेड एंटिटी शैल रिकमेंड और डिक्लेयर ऑल डिविडेंड और कैश बोनसेस एट लीस्ट 5 वर्किंग डेज बिफोर द रिकॉर्ड डेट इज फिक्स्ड, यानी उसके सारे पुराने काम कंप्लीट हो जाने चाहिए. एंड द लिस्टेड एंटिटी शैल एंश्योर द टाइम गैप ऑफ एटलीस्ट 30 days बिटवीन 2 रिकॉर्ड डेट्स, यानी
दो रिकॉर्ड डेट जो है वो एक के बाद एक तुरंत नहीं आनी चाहिए, उनके बीच में हमेशा गैप रहना चाहिए, एंड दैट गैप शुड बी ऑफ एटलीस्ट मिनिमम 30 days. So this is, friends, you can say the different compliances. Certain compliances were on a quarterly basis and certain compliances were on yearly basis. So what I request is at least हम खाली नोटबुक के अंदर एक लिस्ट बना देते हैं कि कौन से compliances किस तरीके से किए जाते हैं, because this was not that much important, right? तो आप मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें. Quarterly and yearly. First है a report on investor complaints grievance redressal. दूसरा था रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तीसरा था रिपोर्ट ऑन शेयर होल्डिंग पैटर्न. चौथा था यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इश्यूज. पांचवा मैं खाली बाजू में नंबर ऑफ डेज लिख रहा हूं. These all are within end of each quarter. Right? These are which compliances, friends? This all are quarterly compliances. पहले इतना कॉपी करो friends.
फिर हम ईयरली कंप्लायंसेस भी लिख ले साथ साथ। तो मेजरली 3 है। सबमिशन ऑफ एनुअल ऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स। दूसरा submission of annual report to recognized stock exchanges। तीसरा annual report to be sent to ये खाली लिख। Now friends, we are moving towards the, then you can say that we have completed this parts if you have a log of it. Then we completed compliances. Now moving to a simple part and a small part, board meeting intimations, right? So let us have a look at that part. Board meeting intimations. Logic. तो ये व्हाट विल हैपन बेसिकली, लिस्टेड एंटिटी में जिस दिन बोर्ड मीटिंग होने वाली होगी उसके कुछ दिन पूर्व उस बोर्ड मीटिंग में क्या होने वाला है उसके बारे में इंटीमेशंस चले जाएंगे। किसको चले जाएंगे? देन इट विल गो टू द recognized stock exchange, right? So the listed entity shall give prior intimations to the recognized stock exchanges about the board meetings in which specified proposals are to be considered at least specified days prior to बोर्ड मीटिंग। यही दो चीज इंपॉर्टेंट होगी, कौन से स्पेसिफाइड प्रपोजल्स है एंड उसके मुताबिक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज है। यानी कुछ इंटीमेशंस 2 दिन पहले जाने चाहिए, कुछ इंटीमेशंस 5 दिन पहले जानी चाहिए, कुछ इंटीमेशंस 11 दिन पहले जानी चाहिए, उसके ऊपर है। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है, इसमें कुछ डिटेल में कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो आप एक काम करो, मेरे साथ साथ इन्हें लिखना शुरू करो। आई एम जस्ट राइटिंग ऑन द स्क्रीन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
एटलीस्ट 2 days प्रायर इंटीमेशंस। डिस्कशन होने वाला हो तो 2 दिन पहले इंटीमेशन चला जाएगी, यानी जिस बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन होने वाला है उस बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले स्टॉक मार्केट को इंटीमेशन चला जाएगा। जिस बोर्ड मीटिंग में हम डिसाइड करने वाले कि हम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो है वो इश्यू करे कि ना करे। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की जगह एक हायर अच्छा वर्ड हो सकता है कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जो है वो इश्यू करे कि ना करे। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आज नहीं तो कल किसमें कन्वर्ट होने वाले हैं, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। या फिर जिस बोर्ड मीटिंग में फंड रेजिंग की बात होने वाली हो, फिर ये फंड रेजिंग पब्लिक ऑफर से हो, राइट इश्यू से हो, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट या गोल्ड डिपॉजिट रिसिप्ट से हो, यानी कि हम फॉरेन में सिक्योरिटीज इश्यू करने वाले हो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स हो, कोई भी तरीके से हो। तीसरा बायबैक। चौथा अगर वॉलेंटरी डिलिस्टिंग, यानी हमारी लिस्टेड कंपनी अपने आप को स्व इच्छा से एक या अनेकों स्टॉक एक्सचेंज से क्या करवाने वाली हो, डिलिस्ट करवाने वाली हो, डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला हो, या फिर बोनस इश्यू आने वाला। ये सारी इंटीमेशंस ये सारी चीजें जिस बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होने वाली हो, राइट, उस बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले स्टॉक मार्केट को इंटीमेट करना होगा। इतना पहले लिख लो फ्रेंड्स। अब कुछ इंटीमेशंस, एक चीज का इंटीमेशन 5 दिन पहले देना होगा। कौन सी चीज का? कंसिडरेशन ऑफ क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स या हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स, यानी इनका इंटीमेशन 5 दिन पहले जाएगा। एंड कुछ इंटीमेशंस 11 दिन पहले जाएगी। कौन सा? कंसिडरेशन ऑफ एनी चेंज
यानी ऑल्ट्रेशन इन फॉर्म और नेचर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी, यानी कोई सिक्योरिटी जो लिस्टेड उसका फॉर्म या नेचर चेंज हो रहा हो, या उसके कोई राइट्स या उसके कोई प्रिविलेजेस चेंज होने वाली हो, या जो डेट चेंज होने वाली हो on which interest is payable or security to be redeemed. इतना ध्यान रखना है। एंड खास करके क्या ध्यान रखना है फ्रेंड्स आपको, कि जब आप 2 दिन की बात करते हो, 5 दिन की बात करते हो, या फिर आप 11 दिन की बात करते हो, तो days are excluding the date of intimation and date of board meeting. यानी 2 दिन पहले भेजना होता है, एटलीस्ट 4 दिन पहले भेजना, बिकॉज जिस दिन बोर्ड मीटिंग है वो भी नहीं गिना जाएगा, जिस दिन इंटीमेशन भेजते हैं वो भी नहीं गिना जाएगा, और बीच के 2 दिन, सो 4 दिन पहले। तो वैसा आपको खास करके ध्यान रखना। Just copy down this one. This is the 5th part, and then we move to the last part of this particular chapter. सो फ्रेंड्स, लास्टली हम कह सकते हैं, ये आपको एक बार पढ़ लेना है। मैंने शॉर्ट में समराइज करवाया, वो पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। 2 दिन पहले, 5 दिन पहले एंड 11 दिन पहले। अब एक लास्ट पार्ट के ऊपर जाता है, कुछ सन्ड्री कंप्लायंसेस, कॉमन ऑब्लिगेशंस के ऊपर जाता है, जिसमें पहली बात है जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कंप्लायंस। तो हर एक लिस्टेड कंपनी में ध्यान रखना है कि KMP, की मैनेजरल पर्सनल, राइट, फिर उसके डायरेक्टर्स है, प्रमोटर्स है, तो वो अपने नियमों का पालन करते हैं कि नहीं, वो हर एक लिस्टेड कंपनी को ध्यान रखना होगा। एवरी लिस्टेड कंपनी हैज टू अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर, एंड कंप्लायंस ऑफिसर क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी होना, मीन्स ही शुड बी एलिजिबल एज पर द सेबी गाइडलाइंस टू बिकम अ कंप्लायंस ऑफिसर। मोरओवर कंप्लायंस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, दैट इट द कंपनी कंप्लाइज विद ऑल रेगुलेटरी प्रोविजंस, राइट, इन लेटर एज वेल एज स्पिरिट। यानी कि उन्हें कंप्लायंस करना है, यानी सिर्फ नियमों का पालन नहीं करना है, उसके इंटेंशन के साथ उसको फॉलो करना है। द कंप्लायंस ऑफिसर शैल कोऑर्डिनेट विद द सेबी, यानी कोऑर्डिनेशन फिर सेबी के साथ, या स्टॉक एक्सचेंज या डिपोजिटरी। डिपोजिटरी यानी जहां पे हमारा डीमेट अकाउंट खुलता है, लाइक NSDL, CDS, उन सबके साथ जो कोऑर्डिनेशन का काम होता है, लाइजनिंग का काम होता है, उनका होगा। द कंप्लायंस ऑफिसर्स आर रिपोर्ट टू दिस विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस। सो रेगुलर जो रिपोर्टिंग का काम है वो भी कौन करेगा, कंप्लायंस ऑफिसर। द कंप्लायंस ऑफिसर शुड एंश्योर दैट करेक्ट प्रोसीजर्स हैव बीन फॉलोड, एंड द कंप्लायंस ऑफिसर शुड मॉनिटर द ईमेल एड्रेस ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल डिवीजन, खास करके करता रहेगा, राइट। मोरओवर लिस्टेड एंटिटी जो है
उन्हें क्या करना होगा, एवरी लिस्टेड एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सर्टिफाइंग द लिस्टेड एंटिटी हैज एंश्योर्ड इट्स एक्टिविटी इन रिलेशन टू शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी एज मेंटेन इधर इन हाउस, यानी उनका इन हाउस शेयर ट्रांसफर डिपार्टमेंट है, या फिर उन्होंने खास करके रजिस्ट्रार टू एन इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट किया, लाइक कार्वी. Such certificate shall be duly signed by both the compliance officer of the listed entity and authorized representative of share, and such certificate is submitted within 1 month from the end of compliance, end of quarter. And खास करके the listed entity shall either appoint a share transfer agent, यानी कि उनका अलग से एजेंट होना चाहिए, या फिर वो इन हाउस शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी को मेंटेन करेंगे. Where the listed entity manages the share transfer facility in house and the total number of holders of securities exceeds 1 lakh, तो फिर उन्हें क्या करना होगा, उन्हें या तो कैटेगरी 2 के शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करना होगा, या फिर जो सेबी रजिस्टर्ड हो उसको अपॉइंट कर देना होगा. फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, एज डिस्कस्ड इन सेक्शन 188. ये जब फ्रेंड्स मैं आपके साथ सेक्शन 188 डिस्कस करता हूँ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस चैप्टर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, उसमें ये बता देता हूँ, सेम टू सेम है, तो उसे खाली चेक कर लेना. एंड एक लास्ट चीज आती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी. राइट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस? तो फ्रेंड्स इसके ऊपर जाए उसके पहले खाली सन्ड्री कंप्लायंसेस में कुछ नोट डाउन कर देते हैं. Listed entity to ensure that following does compliance of their obligations. Key managerial personnel, promoters, any other person ये लोग अपना पालन करते कि नहीं वो चेक कर लेना होगा. दूसरा कंप्लायंस ऑफिसर की बात है. तो खास करके एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना होगा. एंड उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी. खास करके रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन कौन सी होगी फिर मैं आपको कॉपी करने के लिए समय देता हूं. जो एक मैंने बताया, लिस्टेड एंटिटी टू डू compliance in true letter as well as spirit, जिसे हम कहते हैं ना ड्यू डिलिजेंस, नियमों का दिलो जान से क्या करना, पालन करना, यानी उसके इंटेंशन के साथ फॉलो करना. कोऑर्डिनेशन या रिपोर्टिंग जो करना होता है किसके साथ, सेबी के साथ,
स्टॉक एक्सचेंज के साथ या डिपॉजिटरी के साथ, वो भी कौन करता है? कंप्लायंस ऑफिसर। Correct procedures are done and monitor email address of grievance redressal डिपार्टमेंट। सो ये चेक करता रहेगा कि भाई जो इसका ग्रीवियंस रिड्रेसल डिपार्टमेंट है उसका वो बराबर से काम करते हैं कि नहीं करते। दैट कंप्लायंस इज ऑल्सो ही विल कीप ऑन इंश्योरिंग। जस्ट कॉपी डाउन दिस मच। नीचे का भी लिख लेना। एंड सेकेंड लास्ट एक छोटा सा पॉइंट, share transfer agent letter, listed entity shall either appoint share transfer agent or share transfer facility इतना फ्रेंड्स लिख लो।
Now friends, we see the last compliance notes with respect to कि कोई भी listed कंपनी हो उसकी सब्सिडरी हो, तो अगर उसकी सब्सिडरी भी लिस्टेड होगी तो कोई दिक्कत है नहीं, पर अगर उसकी सब्सिडरी है वो अनलिस्टेड है एंड वो मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी होनी चाहिए, वो मटीरियल होनी चाहिए. मटीरियल इन द सेंस व्हाट, तो दे से मटीरियल सब्सिडरी मीन्स अ सब्सिडरी जिसकी इनकम या नेटवर्थ कंसोलिडेटेड of listed entity and its subsidiaries in the immediately preceding accounting. यानी जितनी भी सब्सिडरीज है एंड लिस्टेड एंटिटी है उन सबकी जो टोटल इनकम होती है उनमें से उसका 20% ढूंढो. जिस सब्सिडरी की इनकम या उनके टोटल नेटवर्थ जो है उनकी नेटवर्थ के 20% से ज्यादा हो रही हो उसे हम कहेंगे मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी. अगर वो मटीरियल है राइट पर लिस्टेड सब्सिडरी है तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, बिकॉज उनके ऊपर भी एलओडीआर आ ही जाता होगा. पर जो सब्सिडरी अनलिस्टेड है राइट उनके कुछ कंप्लायंसेस हमें यहां पे देखने होंगे, जैसे कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड एंटिटी शैल बी ए डायरेक्टर ऑफ एन अनलिस्टेड मटीरियल सब्सिडरी. पूरे इंडिया की हो कि इंडिया के बाहर की हो. दूसरा क्या, द ऑडिट कमिटी shall also review the financial statements. પછી the minutes of board meeting shall be placed. फिर the management of unlisted subsidiaries shall periodically bring to the notice of board of directors a statement of all significant transactions and arrangement done. वो रेगुलरली उनके नोटिस में आना चाहिए. सिग्निफिकेंस मीन्स 10% या उससे ज्यादा वाले हो. ऐसे कुछ कंप्लायंसेस आते रहेंगे राइट. तो व्हाट दे से बेसिकली, इसको भी एंड में लिख लेते हैं, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट टू एंड अप विथ लेट अस जस्ट राइट इट डाउन. Meaning of material unlisted subsidiary. Subsidiaries income or net worth is greater than 20% of consolidated income or net worth of listed entity and its subsidiaries in immediately preceding financial. ऐसी जो सब्सिडरी होगी उसे हम कहते हैं मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी. खास करके क्या कंप्लायंसेस, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड एंटिटी टू बी अ डायरेक्टर on BOD of materially unlisted subsidiary.
वेदर इंडियन और फॉरेन, ये सबसे पहला कंप्लायंस। पहले इतना लिखो, जस्ट राइट डाउन दिस मच। फ्रेंड्स, अगर कोई मटेरियल सब्सिडरी हो पर वो सब्सिडरी लिस्टेड हो तो फिर हमें दिक्कत नहीं, बिकॉज वो सब्सिडरी भी क्या करेगी, लिस्टेड एंड ऑब्लिक एलओडीआर का पालन करेगी। पर हम खास अनलिस्टेड पे क्यों जाते, बिकॉज अनलिस्टेड के ऊपर एलओडीआर लगता नहीं, पर क्योंकि वो मटेरियल है तो लिस्टेड एंटिटी ध्यान रखेगी, बिकॉज सब्सिडरी की सारी चीजें होल्डिंग के अंदर क्या होने वाली है, मर्ज होने वाली। दूसरा, बोर्ड मीटिंग मिनट्स ऑफ मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी टू बी रिव्यूड बाय listed entity board of directors, audit committee of listed entity to review financial statement of material unlisted subsidiary, management of material unlisted subsidiary to present statement of material transactions and arrangements to board of directors of listed entity। मटीरियल ट्रांजेक्शंस एंड अरेंजमेंट यानी जो 10% रेवेन्यू या एक्सपेंस या असेट्स या लायबिलिटी से ज्यादा हो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल के, उन्हें हम क्या कहेंगे, मटीरियल। passing special resolution for A reduction of shareholding below 50% in materially unlisted subsidiary। दूसरा, sale of assets of material unlisted subsidiary selling 20%। ये सारी चीजों का खास करके ध्यान रखना होगा। इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। राइट फ्रेंड्स, सो हियरबाय वी एंड अप विद दिस LODR। खाली ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स आपको डे बिफोर एग्जामिनेशन, अगर आप ये सारे पार्ट्स को देखो तो वी एंडेड अप विद दिस एंड ऑल्सो दिस। डे बिफोर एग्जामिनेशन ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये आप खास करें। सो खाली नोटबुक रीड करो, नोटबुक एक बार पढ़ लो जो मैंने लिखा है वो। दूसरा, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट जो है वो एकदम डिटेल में आप रीड कर लो, बाकी सब कुछ रीड नहीं करोगे तो एब्सोल्युटली चलेगा। दिस इज सेबी LODR रेगुलेशन। सो नाउ वी कंप्लीटली एंड अप विद दिस चैप्टर ऑफ सेबी, बिकॉज पहले पार्ट में हमने सेबी एक्ट 1992 देखा, बाद में हमने सेबी LODR 2015। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.